اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الظاہر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیۃ ولا متشرعیۃ بل هو باق علی معناه العرفی کما سنوضحہ انشاءاللہ الی آخرہ۔ حضرات یہ عبارت ہو چکی تھی مگر میں نے مکمل نہیں کی تھی گفتگو کو تعریف کے سلسلے سے، لہٰذا یہاں سے انشاءاللہ اس کو ملائیں گے۔ لیکن اس کے پہلے میں پتہ نہیں کیوں میرا ایک مزاج آپ جانتے ہیں کہ جب تک خود مطمئن نہیں ہو جاتا ہوں کہ میری بات تو واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اگر کلاس میں 30 لوگ ہیں یا 20 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں تو 10 کے لیے واضح نہ ہو، ممکن ہے پوری کوشش کے باوجود، لیکن اکثریت سمجھ جائے تو بھی کافی حد تک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی جو نہیں سمجھ پاتے ہیں تھوڑا سا مباحثے میں مطالعے میں آگے سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جہاں مجھے لگتا ہے کہ ذرا سی ابھی تھوڑی اور وضاحت ضرورت ہے اس وقت تک میں آگے نہیں بڑھتا ہوں۔ آپ لوگ ماشاء اللہ 2-3 ہمارے ساتھ ہیں، 4 دن سے آپ لوگوں کو اندازہ لگ چکا ہے۔ اسی بات کے پیش نظر وہ جو سلطے والی بات تھی اس میں ایک مثال دے کر کے میں پھر آج کے درس پہ وارد ہونا چاہوں گا۔ سلطے میں کتاب کا میں جو بیان کیا گیا وہ تو آپ کے لیے واضح تھا اور آپ نے ترجمہ بھی ابھی ذیشان صاحب کر لیا، کوئی دشواری نہیں آئی، لیکن ذہن میں اور بہتر طریقے سے اس عبارت کا مفہوم اتر جائے اس کے لیے میں مثال دے رہا ہوں۔ دیکھیے کیا چیز ہوتی ہے، ایک ہے دین جو مال ہے، ایک ہے حق جو سلطہ ہے۔ انہوں نے دین کو مال کہا ہے اور کیا نام ہے حق کو سلطہ کہا ہے، اور کہا ہے مال کی تملیک ہو سکتی ہے، حق کی تملیک نہیں ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے کہ حق جو ہے ایک سلطنت ہے، سلطنت فعلی جو انسان کی گردن پر ہے کسی اور کا۔ ایسے دیکھ لیجئے کہ یہ زید ہے، ٹھیک ہے، یہ عمر ہے، ٹھیک ہے، عمر یہ مالک ہے 100 روپے کا، یہ مدیون ہے نا، مقروض ہے۔ یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ حق رکھتا ہے، مثلا حق ولایت کس پر رکھتا ہے؟ عمر پر، ٹھیک ہے۔ یہ مملا علیہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہیں، جو بھی ہو، یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر حق ہے، حق ولایت اس کے اوپر ہے۔ حق ولایت حاصل کس کو ہے؟ زید کو حاصل ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے، 100 روپے یہ عمر جو مدیون ہے یہ کیا بیچ رہا ہے؟ گیہوں بیچ رہا ہے، گیہوں بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنا؟ 10 کلو۔ یہ گیہوں جو 10 کلو بیچ رہا ہے نا، یہ 10 کلو گیہوں بیچ رہا ہے۔ زید نے کیا کہا کہ جو 100 روپے میرے تمہارے گردن پہ ہیں اس کو ہم قیمت بنا دیتے ہیں، اس کی قیمت تو اس کی طرف سے ہوگی نا، زید کی طرف سے وہ قیمت بن گئی۔ اس نے کہا اس کو تمہیں 100 روپے مالک بناتے ہیں۔ جب یہ مالک بنایا تو دین اس کی گردن سے ساقط ہو گئی، اس 100 روپے کا مالک یہ ہو گیا، گیہوں کا مالک یہ ہو گیا۔ یہ مشکل نہیں ہے نا، کیونکہ جو انسان کے ذمے میں جو چیز ہے، ذمے ہے، اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اور ملکیت کیا ہے؟ مالک اور مملوک کے درمیان کی نسبت کا نام ہے، اس میں مملہ کے علیہ کی ضرورت نہیں ہے، ہوگی بات۔ اب آئیے حق ولایت میں، زید کو عمر پہ حق ولایت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ حق ولایت کے حاصل کا مطلب تسلط حاصل ہے، یہ موتی ہے، یہ مطاع ہے، اس کو حق کے تسلط حاصل ہے۔ اب یہ اس کے پاس کیا ہے؟ 10 کلو، کیا ہے؟ 10 کلو گیہوں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں تو اس نے 10 کلو گیہوں آرام سے 100 روپے کے بدلے بیچ دیا تھا، ٹھیک۔ یہاں بھی حق زید کو حاصل ہے، حق ولایت۔ مالک 10 کلو گیہوں کا کون ہے؟ عمر ہے۔ تو کیا عمر یہ کر سکتا ہے کہ اس 10 کلو گیہوں کو بیچ دے اس حق ولایت کے بدلے میں جس کو زید قیمت بنا رہا ہے؟ اگر یہ حق کے ولایت کو زید قیمت بنا دے گا تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ابھی ولایت اور سرپرستی زید کو عمر پر حاصل ہے، سرپرستی، سلطنت۔ تو ایک ہوگا سرپرست
ایک ہوگا مسلط اور ایک وہ ہوگا جس پر سرپرستی حاصل ہے، جس پر تسلط حاصل ہے، مسلط علیہ۔ تو ابھی تو یہ مسلط ہے، یہ مسلط علیہ ہے، لیکن اگر یہ حق کو قیمت بنا دے گا اس 10 کلو گیہوں کی تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حق کدھر آ جائے گا؟ ادھر آئے گا، یعنی امر خود اپنا ولی بن جائے گا، مسلط علیہ ہو جائے گا، اپنے اوپر سلطنت حاصل کر لے گا، اور انسان اپنے اوپر مسلط حاصل یعنی خود ہی مسلط بھی ہو، خود ہی مسلط علیہ بھی ہو۔ ہاں بات ہو رہی بات؟ یہ ہے مسئلہ اصل۔ اب سب کے لیے حل ہو گیا مسئلہ؟ چلیے، عمل حقوق قابلہ تو آسان تھا، یہ ہو گیا تھا اس کا ترجمہ۔ اب ظاہر پہ آ جاتے ہیں، ثم الظاہر۔ فیض صاحب مشکل تو نہیں، دوبارہ تو نہیں دہرانا ہے؟ ثم الظاہر، یہ عبارت ہم جلدی سے پڑھتے ہیں چونکہ یہ والا صفحہ تقریباً ہو چکا تھا کل، ایک دو جگہ میں نے چھوڑا تھا مسامحہ وغیرہ کی وضاحت، اس لیے اس کو آج دہرا رہا ہوں۔ ظاہر امر یہ ہے کہ لفظ بے کی کوئی حقیقت شرعیہ نہیں ہے، لفظ بے حقیقت شرعیہ نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، شریعت میں استعمال، لیکن اصل میں یہ پہلے سے اسی معنی میں استعمال ہوتا تھا جس معنی میں ابھی اہل شرع استعمال کرتے ہیں۔ نہ حقیقت شرعیہ ہے کہ اسلام نے آ کے بنایا، نہ حقیقت متشرعہ ہے کہ متشرعین نے اس کو کسی معنی میں استعمال کیا ہو، بل ہوا باقی علی معنی العرفی، جو معنی عرفی تھا اس کا اسی پر ابھی بھی، شریعت سے پہلے بھی، یعنی شریعت اسلامی سے پہلے بھی اسی چیز کو بے کہتے تھے، شریعت اسلامی کے بعد بھی اسی چیز کو بے کہتے ہیں۔ کما سنوضحہ، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، الا ان الفقہاء قد اختلفوا فی تعریف ہی، ٹھیک ہے، اس کے رنگ ڈھنگ طریقے جو رائج ہے عرف میں، جس چیز کو بے عرف میں کہا جاتا تھا اسی میں کو متشرعین بھی کہتے ہیں بے، لیکن بے کی جو ایکچول تعریف ہے، جو تعریف حقیقی ہے، اس کو لے کر کے ہاں اختلاف ہو گیا ہے علماء کے درمیان، فقہاء کے درمیان۔ پس مبسوط میں، سرائر میں، تذکرہ اور اس کے علاوہ دوسری علامہ کی کتابوں میں کیا ہوا ہے؟ بے کی تعریف ایسے کی گئی، کیسے؟ انتقال عین من شخص الى غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی، کہ عین کا منتقل ہونا عین کا منتقل ہونا ایک شخص کی طرف سے دوسرے شخص تک کس چیز کے بدلے میں؟ ایک معین شدہ، فرض شدہ عوض کے، یعنی قیمت کے بدلے میں، علی وجہ ترازی بنیاد پر۔ اس میں مسامحہ تھا، لہذا لوگوں نے اس تعریف سے عدول کے دوسری تعریف پیش کی ہے، جیسے شہید ثانی نے، لیکن مسامحہ کیا ہے وہ میں نے نہیں بیان کیا تھا، کہ وعدہ کیا تھا کل بیان کروں گا۔ مسامحہ اس میں دو جگہ پہ ہے۔ پہلی بات تو انہوں نے فرمایا انتقال و عین، بے جو ہے وہ انتقال و عین کا نام ہے۔ انتقال جو ہے اثر بے ہے، انتقال پہلا اشکال اس تعریف پر، انتقال اثر بے ہے نہ کہ خود بے۔ جب آپ بے کر لیتے ہیں تب مال منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بے کا نتیجہ، واضح ہو رہی بات، بے کا نتیجہ ہے انتقال، نہ کہ خود بے۔ بے اس معاملے کو کہتے ہیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں، ابھی آئے گا کسے کہتے ہیں بے، انتقال کو بے نہیں کہتے، انتقال جو نتیجہ ہے، اثر ہے، ایک بار اشکال۔ دوسرا اشکال جو ہے انتقال مقولہ انفعال میں سے ہے اور بے مقولہ فعل میں سے ہے، بے مقولہ فعل میں سے ہے۔ تعدیہ کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے بے میں کچھ کیا جا رہا ہے، انتقال میں کچھ ہو رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے، میں اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ بے میں کچھ کیا جا رہا ہے، انتقال میں کچھ ہو رہا ہے۔ بے جو ہے وہ مقولہ انفعال میں سے، انتقال مقولہ انفعال میں سے ہے۔ اگر لکھ رہے ہیں تو ایسے لکھیے گا کہ انتقال جو مفعول انفعال میں سے، مقولہ انفعال میں سے ہے، اور بے مقولہ فعل میں سے ہے، ٹھیک، یہ دو فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق آپ نے کہا علی وجہ، تیسرا اعتراض، فرق میں کہہ رہا ہوں، اعتراض
मुसामहा जो इसमें 2 मुसामहा था, तीसरा मुसामहा आपने कहा अला वजह तराजी हुजूर वाला, अला वजह तराजी बे इंतकाल हुजूर वाला, अला वजह तराजी बे इंतकाल ऐन मिन शख्स इला शख्स अला वजह तराजी, रज़ायत की बुनियाद पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुयू जबर की बुनियाद पे वाक़े होती हैं वो इस फहरिस्त से बाहर हो जाएंगी, हालांकि होती हैं वो भी बे। कैसे? हाकिम शर बीच में मुदाखलत करता है, बे इकराही वजूद में आती है बाज़ औकात में, बाज़ औकात हाकिम शय उसको बे इकराही कहा जाता है, बे इजबारी नहीं कहा जाता, इजबार करता है मगर उसको बे इकराही कहा जाता है इस्तिलाहन। बे इकराही में क्या होता है, हाकिम शर मुकल्लफ को बे पे मजबूर करता है। जब मजबूर करता है तो मामला तो करता है, मामला सही भी है शरअन लेकिन तराजी नहीं है। ये सब मुसामहा है जो आपकी तारीफों पाया। चूंकि मुसामहा पाया जा रहा था अदल आखरून, दूसरे लोगों ने इस तारीफ से क्या कर लिया, मजारा नहीं आ रहा है मौलाना, दूसरे लोगों ने इस तारीफ से उदूल कर लिया और फिर तारीफ इस तरीके से की अल इजाब वल कबूल। तारीफ काहे की हो रही मौलाना, बे की हो रही है, बे की हो रही है, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। बे क्या इजाब और कबूल है, इजाब और कबूल क्या है, काम है कि लफ्ज है, लफ्ज है, इजाब और कबूल क्या है, लफ्ज है जो दरवाके किसी काम की हिकायत करता है, खुद काम नहीं है। इजाब और कबूल जो क्या है, अनकहतो और कबिल तो ये लफ्ज है, दरवाके किसी काम की हिकायत करता है। हाँ, किसी काम की हिकायत कर रहा है, वो क्या है, उल्क़े और इर्तिबात ज़ौजैन। उनको समझने दीजिए भाई, आप लोग और उधर क्या देख रहे हैं, हर बात मत देखिए ना उधर। अब जब शादी की बात आएगी तो मतलब आपको देखेंगे सब लोग, ये गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। अब देखिए जब मिज़दाक मिल जाता है मिसाल हाँ, तो वो उनके तो कम से कम अपने दिमाग को उधर ले जाकर उनको मुंतशिर मत कीजिए आप। वो बेचारे ध्यान से पढ़ रहे हैं, मतलब तवज्जो सुन रहे, गौर कर रहे थे, वो आपने डिस्टर्ब कर दिया उनको देख के। खैर, तो अनकहतो और कबिलतो लफ्ज है ना, लफ्ज अनकहतो और कबिलतो के जरिए से क्या समझ में आता है, इर्तिबात ज़ौजत, उल्क़े ज़ौजत है, समझ में आता है। तो ईजाब और कबूल जो दलालत करता है फला पर, ये हो गई तारीफ, चूंकि उसमें मुसामहा था लिहाजा ये तारीफ की गई। लेकिन इस तारीफ को भी जामिउल मकासिद ने, साहिब जामिउल मकासिद ने कबूल नहीं किया है ना। चलिए इबारत पढ़ते हैं हम, वह इन्न हाज़ा तारीफ इन्न फी हाज़ा तारीफ मुसामहतन, और क्योंकि इस तारीफ में देखिए मौलाना, जैसे वहां ऊपर लहू था ना और लैसा का इस्म बाद में आया था, वैसे ही यहां पर फी है और इन्ना का इस्म बाद में आया। बस फर्क ये है कि वहां आपने हकीकतुन शरीयतुन पढ़ा था, यहाँ मुसामहतन पढ़ा है और मुसामहतन वाज़हतन पढ़ा, सेम है, कोई फर्क नहीं है, बस नासिब और राफे का फर्क है, ठीक है, मुजिब रफ का और मुजिब नस्ब। खैर, तो अदल आखरून, कुछ दूसरे लोगों ने उससे उदूल किया इस तारीफ से, इला इस तारीफ की तरफ। वो क्या है कि किसे कहते हैं बे, अल इजाब वल कबूल अद्दालान अल इंतकाल, इजाब और कबूल जो दलालत करता है किस पर, इंतकाल पर। हम लोग अगर देखेंगे सही तौर पर सब तारीफ सही है, जो कह दे सब सही है, कोई मुश्किल नहीं भाई, ना उसमें मुश्किल नहीं, ना मुश्किल नहीं। ये तो फन्नी तारीफें हैं जो शेख अंसारी जैसी शख्सियतों को जेब देती है, हैं इस तारीफ में इश्काल करना, वो करना। हम लोग तो सब सही तारीफ है कि नहीं, चाहे वो कही चाहिए, कही चाहे वो कही है, हम एक ही मतलब समझ में आता है हम लोगों को सबसे, है कि नहीं मौलाना, और क्या। खैर चले, हाँ, मगर फ़क़ीह हज़रात जो मुज्तहिद हज़रात उलझते भी हैं और उलझाते भी हैं लफ्ज़ों में। खैर, इसी का नाम तो इज्तिहाद बनाना चाहिए, इसी का नाम तो इज्तिहाद है। इसमें एक शर्त बनाना चाहिए आपके साथ, क्या, रेट कम करवा के जो मामला किया जाए। अच्छा, याद क्यों नहीं, तो मॉल और फिक्स रेट भी तो होता है, बहुत हाई है, फिक्स रेट वाले भी अब कम कर देते हैं ना, फिक्स रेट वालों में भी अगर कहिएगा भैया कम कर देते हैं। कम किया था ना फैसला फिक्स रेट वाले ने, इन्होंने मुझे एक सेट दिलवाया था, डिनर सेट, अभी लखनऊ में,
कम क्या करवाया था, फिक्स रेट पे कम करवा दिया फिक्स इन्होंने। रेट में कम करते हैं। इन्होंने फैज साहब ये जुगाड़ू आदमी है। खैर चलिए हम हाशिए पे ना जाए ज़्यादा। खैर मतन चल रहा है, हाशिए में चले जाते हैं तो मतन रह जाता है। वह सो इन आदत तारीफ, इसमें तारीफ मुसामे आया, दूसरों ने ये तारीफ की ईजाब और कबूल वाली। वह सो, अब सुनिए, वह सो इन्नल बै मिन मकूलतिल माना दूनल लफ्ज, क्योंकि बै काम करने को कहते हैं, बोलने को नहीं कहते हैं। बै जो है वो फेल के अंजाम देने को कहते हैं, बोलने को लफ्ज को नहीं कहते। माना है क्योंकि बै जो है मतलब का नाम है, माने का नाम है ना। बै लफ्ज का बोलने का नाम नहीं है। तो चूंकि लफ्ज जो वो बै जो है वो मकूल माना में से है, मकूल लफ्ज में से नहीं है। अदला जामुल मुकासिद, जामुल मुकासिद ने इसको भी कबूल नहीं किया है। अब ब्रैकेट पढ़ लीजिए, बीच में बिल्कुल रुक जाता है गुफ्तगू सिलसिला, क्लास के टाइम फोन आते ही। इनको समझाया था कल 11:30 के बाद फोन कीजिएगा, कलकत्ता से कर रहे हैं एक साहब, ज़रूरी काम था इनका कोई। टाइम की लोग रियायत नहीं करते हैं। हाँ 11:15 कर दिया। जैसे ऑफिस में पहुंचना है कि 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, बिफोर, जब पता है बता दो। मतलब देर से करना चाहिए, कोई आपने कहा कि मतलब 10:30 पे कर लीजिएगा तो 10 मिनट बाद ही 10 मिनट बाद करे फ़ोन ना, आदमी कहीं बिजी है, कुछ है, आपको पता है क्लास में। खैर चलते हैं, अब ब्रैकेट पढ़ लेते हैं। तो उन्होंने क्या फरमाया कि ब्रैकेट में इसी लफ्ज़ के बारे में एक जुमला का, कुछ अलग से नहीं है सो इन्नल बै मिन मकूलतिल माना, बै मकूल माना में से है, मकूल लफ्ज़ में से नहीं है। अब ये लफ्ज़ चाहे अकेला बोला जाए, हैं मुजर्रदन, लफ्ज़ बे तो खाली, लफ्ज़ बे तो खाली बोला जाए, और बेशर्त कसदिल माना, या ये के माना बेतों को आप ज़हन में रखें, कसद माना, चाहे सिर्फ लफ्ज़ बे बोला जाए, चाहे माना बे को भी ज़हन में रख के बोला जाए, नियत में माना हो, चाहे नियत में माना ना हो, चाहे नियत में हो, दोनों सूरतों में लफ्ज़ बे फिर लफ्ज़ बे है। इजाब और कबूल जो है वो बेतो जो है वो लफ्ज़ है। तो आप बेतों को बे नहीं कह सकते हैं, लफ्ज़ बे को बे का नाम नहीं दे सकते हैं। लफ्ज़ बे अलग है और माना बे अलग है। बे तो मकूल लफ्ज़ में से है, और उस अमल को जो आप अंजाम देने, उस मामले को, वो मकूल माना में से है, मकूल माना में से है। वइल्ला लम युक़ल इंशाअहु बिल लफ्ज़, अगर बे मकूल लफ्ज़ में से हो जाता, बे मकूल काय में से मकूल है, अहसन बे मकूल, अगर बे मकूल लफ्ज़ हो जाता तो लफ्ज़ का इंशा लफ्ज़ के जरिए से करना माकूल नहीं था। लफ्ज़ का इंशा लफ्ज़ के जरिए से करना माकूल नहीं था। ठीक है, लफ्ज़ काहे के लिए होता है? माना को समझाने के लफ्ज़ बोला जाता है, लफ्ज़ को समझाने थोड़ी लफ्ज़ बोला जाता है। बात हो रही है, लफ्ज़ के इंशा के लिए, लफ्ज़ को समझाने के लफ्ज़ का इंशा नहीं होता है, माना को समझाना होता है। तो आप जो भी बोलते हैं वो माना को समझाने के लिए, और आप कह रहे हैं बेतो क्या है, लफ्ज़ है, बे क्या, सॉरी बेतो नहीं, बे क्या है, वो लफ्ज़ है। ये गोया आप कह रहे हैं बे बेतो है, बे बेतो कहां से हो जाएगा, है बे वो चीज है, वो मामला है, वो माना है, वो काम है जिसकी हिकायत लफ्ज़ बेतो से हो रही है। ठीक है, तो बेतो अलग है और मामले बे, मामले बे जो है वो माना है, मकूल माना में से है, मफहूम है, मतलब है, मैटर है, बात है, काम है, चीज है, अमल है, फेल है, हाँ ये सब है, और आगे बढ़ाइए। लेकिन क्या पता कौन सा लफ्ज़ जो है किसके दिमाग में सही बैठ जाए यहाँ पर, इसलिए मुतबादिल इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो लफ्ज़ बेतो है वो क्या है, कलमा है, वो मकूल है, लफ्ज़ में से है बेतो। अदला आखरून, अदला जामुल मुकासिद, ये ब्रैकेट छोड़ दिए, फिर वापस आइए असली इबारत पे, क्योंकि इसमें भी मुसामिहा था, हैं इस तारीफ में मुसामिहा था, ये मुश्किल थी जो बयान हो चुकी, लिहाजा जामुल मुकासिद के इन मौके के सानी ने क्या किया, तारीफ से उदूल किया, इससे भी, और इस तरीके से तारीफ की। नक़लुल ऐन बिस्सिग़तिल मख़सूसा, नक़लुल ऐन बिस्सिग़तिल मख़सूसा, ऐन को मुंतकिल करना या ऐन का मुंतकिल होना
किसके जरिए से? सेगा मखसूसा क्या होगा बनाना? बेतो 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 या मसलन जवाब में बेतो इश्तरैतो जो भी कह लिए या कबल तो बेतो इश्तरैतो जो भी कह लिए या कबल तो बेतो असल एक लफ्ज ध्यान में रखिए बेतो सेगा। ठीक है। शेख अंसारी फरमाते हैं हुजूर वाला जामा मकासिद के मुसन्निफ साहब आपने कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं किया है, इतना काट पीट के किया तब भी कोई फर्क नहीं हुआ। वही बात आपने कान जो घुमा के पकड़ा है, हाथ घुमा के वही चीज आपने भी की है। कैसे? देखिए फरमाते हैं कि आप उनके कह रहे थे, आपने इतराज किया था वो मक़ूल माना में से है ये मक़ूल लफ्ज में से है तो आपने ईजाब और कबूल के ऊपर इतराज कर दिया कि लफ्ज का इंशा लफ्ज गलत थोड़ी होगा, है ये लफ्ज है और भाई क्या माना है। आपने वही काम किया सेगा का लफ्ज इस्तेमाल करके। आपने क्या फरमाया कि नक़लुल ऐन बिस्सिग़तिल मख़सूसा व यरदु अलैहि, इस पे 3 इराद है, 3 इश्काल हैं, लेकिन 2 इश्काल ब्रैकेट में बाद पढ़ेंगे। पहले पहला वाला पढ़िए चूंकि लफ्ज वाली बहस से मुर्तबित है। व यरदु अलैहि अन्न नक़ल बिस्सिग़ा, मिल गया 1.5 लाइन बाद हाँ 2 लाइन बाद। व यरदु अलैहि अन्न नक़ल बिस्सिग़ति ऐज़न ला युक़लु इंशाअहु बिस्सिग़ा, नक़ल बिस्सिग़ा भी सीगा के जरिए से माक़ूल नहीं है। जैसे अगर आप लोग चाहिए तो वहां पर लिख सकते हैं ऐज़न के सामने निशान बना करके, अगर बै को नक़ल बिस्सिग़ा कहें तो बै को क्या कहा नक़ल बिस्सिग़ा, अगर बै को नक़ल बिस्सिग़ा कहें तो अगर बै को नक़ल बिस्सिग़ा कहें तो जैसे लफ्ज को लफ्ज से इंशा नहीं कर सकते, वैसे ही नक़ल बिस्सिग़ा को सेगा के जरिए नक़ल बिस्सिग़ा को सेगे के जरिए इंशा नहीं कर सकते, इंशा नहीं कर सकते। आपने क्या कहा था कि अल-इजाब अल-क़बूल वो लफ्ज है तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक तरफ तो बै को लफ्ज बना रहे हैं और दूसरे फिर मुश्किल ये आ रही है कि आप लफ्ज की लफ्ज से हिकायत कर रहे हैं। अब अगर आप कहते हैं बै यानी सेगा है नक़ल बिस्सिग़ा, तो फिर आप वही लफ्जी बहस कर रहे हैं। जिस तरीके से लफ्ज को लफ्ज से वो नहीं कर सकते हैं, हिकायत नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं, इंशा नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से सेगा नक़ल बिस्सिग़ा का इंशा सेगा के जरिए से नहीं हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कोई ये कहे, है ना, कि यहां मुराद जो है बै से क्या है, हो सकता है कोई कहे, हो सकता है कि नफ्स व असले नक़ल मुराद है मौक़िफ़ सानी की। मौक़िफ़ सानी ने जो तारीफ में कहा है ना नक़लुल ऐन बिस्सिग़ा, तो मुराद इनकी जो है यहां पर जो है, चले इश्काल में इबारत से पढ़ते हैं। वला यंदफ़ु हाज़ा, हाज़ा नहीं इराद इश्काल, यरदो जो है, यरदो किसने इश्काल किया है? जी शेख अंसारी ने इराद वारिद किया है। और शेख अंसारी अफसल क्या कहते हैं कि हो सकता है कोई हमारे इराद का जवाब दे तो हम बता रहे हैं कि नहीं आपका जवाब कामिल नहीं है, हमारा इराद वारिद होगा आपके इस जवाब से। अब जवाब सुनिए, इराद वाज़ेह है। इराद क्या था, कोई दोहराएगा? इश्काल क्या किया उन्होंने शेख अंसारी ने? इस तरह से जो है के लिए कह रहे हैं कि इंशा जो है लफ्ज से नहीं हो सकता, लफ्ज का इंशा इसी तरह सेगे के जरिए से भी जो है शेगे का इंशा नहीं हो सकता, इंशा नहीं हो सकता। चलिए ये इराद था। जवाब में कोई हो सकता ये कहे क्या, वला यंदफ़ु हाज़ा, ये इराद नफ़ी नहीं होगा इस जवाब से। जवाब क्या है? बिअन्नल मुराद, मुराद यहाँ मौक़िफ़ सानी के क्या है कि अन्नल बै नफ्सुल नक़ल अल्लज़ी हुवा मद्लुस सेगा, बै से मुराद वो नक़ल है जो मद्लुल सेगा है, मद्लुल सेगा है। बै से मुराद क्या है? वो मुराद है जो बेतों का मदलूल है।
बै से मुराद हमारी क्या है, मदलूल बै है, बेतो, मदलूल बेतो, ठीक है, जो हमने कहा है ना, माना है, फिर मकुल माना हो जाएगा वो, ये कहना चाह रहे हैं जी। फज्जालहु मदलूल से, जालहु यानी जालुल बै, फज्जालहु मदलूल सिगते इशारतुन इला तायीन ज़ालिकल फर्द मिन अफराद नक्ल, अफराद ने बढ़ाया है, ज़ालिका सॉरी फज्जालहु मदलूल सिगते इशारतुन इला तायीन ज़ालिकल फर्द मिन नक्ल मिन अफराद नक्ल। तो यहाँ फरमाते ये हैं कि ये इश्काल जो हमारा वाला है ना, ये मुंदफ़ा नहीं होगा, इसलिए कि इसका जवाब ये है कि मुराद मुहक्किक सानी की ये है कि बै जो है वो खुद, मुहक्किक सानी की बै से मुराद क्या है, हाँ खुद वही नकल है कि जो मदलूल बेदो होता है, मदलूल सेगा होता है। पस फजालहू, पस बै को करार देना मदलूल सेगा, ये एक तरीके का इशारा है इस बात की तरफ कि तायीन ज़ालिक का फर्क नकल, नकल के बहुत से मसादिक हो सकते हैं, नकल के मसादिक में से ये वाली नकल मुराद है जिसे बै कहते हैं। तो हमने जो सेगा कहा ना, सेगा मखसूसा, सिर्फ सेगा नहीं कहा, सेगा मखसूसा कहा है। सेगा मखसूसा के जरिए से हम ये कहना चाह रहे हैं, खाली इंतकाल व आइन कह देते हैं, इंतकाल व आइन बे फला मसलन बे किसी भी फला या किसी भी जरिए, तो वहां पर बहुत से नकला, बहुत से मनकुलात आ जाते। नकल तो मसलन हिबा के जरिए होता है, नकल सुलह के जरिए, नकल पता नहीं काहे के जरिए होता है, एक दूसरे तरफ मुंतकिल होता नहीं होता है। नकल की बहुत से अफराद हैं, उसमें से एक फर्द क्या है, बै, मामले बै के जरिए से मुंतकिल होना। तो हमने बिस्सिगतिल मखसूसा इसलिए कहा है ताकि दुनिया समझ जाए कि हम उस नकल की बात कर रहे हैं जो बेतों के जरिए से होता है, ये हमारी मुराद है, ठीक है। ला अन्नहु माखूज़ुन फी मफ़हूमिही, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि सेगा जो है मफ़हूम बै में छुपा हुआ है। हम मानते हैं इस चीज को कि मफ़हूम बै, मानाए बै अलग है और सेगा बै अलग है। आपकी बात सही है कि मफ़हूम बै जो है, मिज़दाक़ बै जो है मक़ूल माना में से है और सेगा जो है वो क्या है, मक़ूल लफ्ज़ में से है। तो हम सेगा को बै की जगह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने लफ्ज़ सेगा को इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि आप ये समझ लें, हमारा मुखातब ये समझ ले कि हम कौन वाले नकल को मुराद लेना चाहते हैं। जी, नकल जो बै वाली होती है वो नकल हमारी मुराद है, ठीक है। ना ये कि ला अन्नहु माखूज़ुन फी मफ़हूमिही, ना ये कि अन्नहु यानी सेगा मखसूसा, अन्नहु यानी सेगा मखसूसा माखूज़ है किस चीज में, मफ़हूम बै में। हत्ता यकूना मदलूल, हत्ता यकूना मदलूल बेतो नकल तो बिस्सेगा, यहाँ तक ये कहा जाए कि मदलूल बेतो जो है वो क्या है, नकल बिस्सेगा। ये देखिए मदलूल बेतो जो है ये इसम यकूनो का, और नकल तो बिस्सेगा जो है वो क्या है, खबर है। अन्नहु लफ्ज़ सेगा मखसूसा कर दिया आप। हाँ, अगर आपको फन्नी देखना चाहते हैं फन्नी तौर पे तो लफ्ज़ से गए वो कह दिए से गए मखसूसा हिकायत के तौर पे, वरना मैंने तो खुद से गए मखसूसा की तरफ पलटाई है, ठीक है। कि से गए मखसूसा जो है इसका मतलब ये नहीं कि से गए मखसूसा जो है वो बै के मफ़हूम में छुपा हुआ है, ठीक है, ताकि ये मुश्किल पेश आ जाए। हत्ता यकूना मदलूलो बेतो नकल तो बिस्सेगा, कि ये कह दिया जाए कि मदलूल बेतो नकल तो बिस्सेगा है, नहीं, ठीक है, ताकि ये मुश्किल पेश आ जाए। हत्ता यकूना मदलूलो बेतो नकल तो बिस्सेगा, कि ये कह दिया जाए कि मदलूल बेतो नकल तो बिस्सेगा है, नहीं, ऐसा नहीं है। मदलूल बेतो नकल तो बिस्सेगा कि मुसावी नहीं है। लिअन्नहु इन उरीदा बिस्सेगते, इसलिए कि अब यहां पे इश्काल आ रहा है इनका, ये लिअन्नहु जो है ना तालील काहे की है, ये शुरू जवाब दिफा है। शेख का इश्काल था एक इराद, उस इराद का जवाब वहां से शुरू हुआ बेन्नल मुराद से। अब शेख ने क्या फरमाया कि ये मुंदफे नहीं होगा आपका,
आपका मसला हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा उसकी वजह इधर मुतवज्जह रहे। क्यों नहीं हल होगा, 1 मिनट की तवज्जो नहीं, 1 सेकंड के लिए ज़हन हटेगा तो फिर गड़बड़ाया मामला। क्यों नहीं फैसा, क्यों नहीं ज़हन नहीं, आँख भी डर रहे हैं, क्यों नहीं इंदफा, हो सकता है हम बहक जाएं, ठीक है, तसलसल से एक बात चल रहे हैं। क्यों नहीं आपका दिफा काबिल कबूल है, इसलिए कि लिअन्नहु इन उरीदा बिस्सिगते खुसूस व बेतो लाज़िमत दौर। अगर आप कहते हैं कि सीगे से मुराद हमारी सीगे बेतो है, सीगे से मुराद क्या है, हाँ बेतो है, तो दौर लाजिम आ रहा है। आप समझाना क्या को चाह रहे हैं, बेतोही को तो समझाना चाह रहे हैं, बे और बेतोही के दो मफहूम को समझाना, बे की तो तारीफ कर रहे हैं आप, और बे की तारीफ के लिए तो लफ्ज बेतो आता है ना। लफ्ज बे जो बेतो में छुपा है, बेतो बे में छुपा हुआ है, दोनों एक ही मादा तो है। तो अगर आप कहते हैं कि सेगे से मुराद बेतो है, तो जो बेतो है वही सेगा है। आप तारीफ बेतो की कर रहे हैं और बेतो के जरिए कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सेगे से मुराद हमारा कौन सा सेगा है, बेतो, और तारीफ का ही करना है, समझाना किस मफहूम को है, बेतो के मफहूम को समझाना है ना। तो बेतो के मफहूम को आप बेतो के जरिए समझाना है, ये दौर है, ये मुश्किल है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मकसूद, अगर आप कहते हैं कि वही और हाँ कहाँ गए भाई, हाँ लिअन्नल मकसूद मारिफत मादत बे, मादे बे ही को तो समझना है हमें, और आप बेतों के जरिए समझा रहे हैं, सादिक रजी साहब बेतों के जरिए समझा रहे हैं, ये सही नहीं है। वइन उरीदा बेहा मा यशमुलो मल्लकतो, और अगर आप कहते हैं नहीं हम सेगे से मुराद मखसूसन सिर्फ और सिर्फ बेतों को नहीं मल्लकतो और नकलतो टाइप के जो अल्फाज होते हैं उसको भी समझाना हम चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं तो वजबल इख्तिसार हो अला मुजर्रद तमलीक व नकल, तो आप ये जरूरी था कि आप कहते कि नकलुल ऐन बिसेगत तमलीक बिसेगत मल्लकतो बिसेगत नकलतो, है ना, ये आपको कहना चाहिए था, ठीक है। आपको इख्तिसार करना चाहिए था, हाँ, सेगे तमलीक और सेगे नकल के ऊपर, ताकि बेतो खारिज हो जाता। क्योंकि अभी तो बेतोही की तरफ दिमाग जाएगा ना, और बेतोही का माना भी समझना है। तो आपको सेगे, अगर आप कह रहे हैं नहीं हम बेतो नहीं मुराद देना चाह रहे थे ताकि दौर न पेश आए, दौर की मुश्किल से बचने के लिए आप कहते मेरी मुराद बेतो नहीं है, तो फिर बताइए क्या है, वो लफ्ज बोलिए ना जिससे बेतो ना आने पाए, वही लफ्ज है जो आपकी मुराद है, ठीक है। तो आप वजब इख्तिसार हो, बस वाजिब हो जाता है इख्तिसार किस चीज को, अला मुजर्रद तमलीक व नकल, मुजर्रद तमलीक और नकल पे इख्तिसार वाजिब हो जाता है, ठीक है। अब इसके आगे एक जुमला आप लिख लीजिए, मुहक्किक साहब लिखिए, जहां पे नकल हो गया मुजर्रद तमलीक व नकल, वहां लिखिए मुहक्किक साहब, हाँ लिखे मुहक्किक साहब, भाई थोड़ा सा टॉन्ट तो नहीं कहेंगे बुजुर्गान के लिए, मगर सवालिया अंदाज है इसमें। मुहक्किक साहब अलबैओ हुआ नकलुल ऐन, अलबैओ हुआ नकलुल ऐन, इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि कुछ अपने पास रहने ना पाए, सब मुंतकिल कर दें, ठीक है। इसलिए लिखवा देते हैं सब चीजें जो अपनी पर्सनल होती हैं, सिर्फ कह नहीं रहे लिखवा भी रहे हैं। क्या मुहक्किक साहब अलबैओ हुआ नकलुल ऐन बेमल्लकतो व नकलतो, बेमल्लकतो व नकलतो, कहिए, लिखा आपने, मुहक्किक साहब अलबैओ हुआ नकलुल ऐन बेमल्लकतो व नकलतो, कहिए, ताकि बेतों को शामिल ना करे, ताकि बेतों को शामिल ना करे, ठीक है। मा यशमुलो है ना, मा यशमुलो, यशमुलो क्या क्या होता है, कम से कम 3 से, बेतो मल्लकतो और नकलतो, कम से कम 3 सेगा है ना बेचने के लिए। अगर आप 20 सेगत मखसूसा कहेंगे और बेतो समझ में आ रहा है तो दौर आ रहा है ना, तो आप उसको बचने के लिए आप क्या कहिएगा,
اگر آپ کی مراد یہ ہے وہ نہیں ہے تو پھر اختصار کیجیے یہ کہنے پر، ایسے کہیے البیع ہوا نقل العین بملکتو و نقلتو، ایسے کہیے، بالصیغہ مت کہیے آپ۔ فالاولی تعریفہ، جب سب کی تعریف میں نقص آ گیا، مسامحہ آ گیا، تو ایک اولا تعریف ہونی چاہیے صاحب کتاب کی۔ یہ تعریف ذہن میں رکھیے گا، امتحان کی تعریف یہ والی ہوتی ہے۔ انشاء تعریف کیا ہے؟ انشاء و تملیک عین بمال، انشاء تملیک عین، تملیک عین کا انشاء کرنا کس کے ذریعے سے؟ مال کے ذریعے سے، ٹھیک۔ ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم، جو چیزیں گزری ہیں وہ سب اس پہ اشکالات وارد نہیں ہو رہا ہے، اعتراضات وارد نہیں ہو رہے ہیں۔ نعم یبقى علیہ امور، ہاں کچھ امور رہ جاتے ہیں جو اس پہ وارد ہوتے ہیں۔ انہ موقوف علی جواز الایجاب بلفظ ملکت والا لم یکن مرادفا له، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بات جو تعریف آپ نے کی ہے نا، یہ اس چیز پر موقوف ہے کہ ملکتوں کے ذریعے سے ایجاب کہنا جائز ہو، ایجاب کا صیغہ جاری ہو کرنا، بیتوں کے بجائے ملکتوں کہہ سکتے ہوں، ہے نا، ورنہ یہ جو ہے وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ مُرَادِفًا لَهُ، ورنہ پھر یہ مرادف نہیں بن پائے گا تملیک کے، ٹھیک ہے۔ وَيَرُدُّهُ أَنَّهُ الْحَقِّ كَمَا سَيَجِي، انشاءاللہ اب اس کی تفصیل جو ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے جلسے میں، چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نعم یبقا کے بعد امور چل رہا ہے ابھی، ابھی کئی امور ہیں، تو اس لیے اس کو یہیں پر روکتے ہیں۔ امور کی بحث جو ہے وہ پہلے ہی والے سے انشاءاللہ اگلے جلسے میں شروع کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔